Hello, dear friends. Again, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of the pathology. Yes, we are going through the very important chapter of the pathology, the neoplasia, which is important not only for the our biochemistry, tumor chapter, pathology part, and in our upcoming days, very important for the surgery, medicine, any subject where we will read cancer. तो कैंसर का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हम पिछले वीडियो में लर्न कर चुके हैं. यस, इन अवर प्रीवियस वीडियो वाई दिस कैंसर इज नोन एज द क्रैब, केकड़ा क्यों कहा जाता है इसे, ये हमने देखा, प्रॉपर इसके नोट्स बनाए. एंड आफ्टर दिस ऑल वी हैड सीन द नियोप्लेजिया टर्मिनोलॉजी. यस, एंड ऑल्सो वी took the reference from the our Robbins. Now in this part, yes, we are going to talk in detail about the types of the neoplasia. Okay, so we will go one by one. Try to understand. As in previous class I told you, neoplasia or you can say neoplasm, okay, neoplasm is the growth, neoplasia is the process. Okay, so you can divide the neoplasm, also you can consider the neoplasia. These may be two types. neoplasm मतलब आप कह सकते हैं ट्यूमर, ये दो टाइप के हो सकते हैं. what are the two different types? you know very well, benign और दूसरा malignant. फाइन सर, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस में हम बिनाइन और मैलिग्नेंट को डिवाइड करते हैं इन ईजी वे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दीज आर द सेल्स which are just doing proliferation, and these all are covered with the capsule. Fine. So what you will say? Yes, this is the cancer, abnormal, excessive, uncontrolled, unrestricted growth of the tissue. You can see. लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है. सो दिस इज द बिनाइन. while the another situation when the basement membrane is broken, fine, and the cells are abnormal, few are very large, few are very small, and they are also breaking the basement membrane as well as capsule. So different kind of size and shape are there. Yes, there is the capsule. Yes, capsule is getting broken. So you can see this all the points. Okay, fine. Try to understand. You can observe here. Yes, the different features we are going to look. आप यहाँ पर देख रहे हैं, this is basement membrane. These are our abnormal, excessive, uncontrolled division showing cells, and this is our capsule. वही चीज़ आपको इधर भी दिख रही हैं, लेकिन इनमें कुछ कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है. What are these differences? We are going to talk. Okay, malignant is more dangerous, benign is comparatively less dangerous. ये याद रख सकते हैं. तो ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जिनके कारण हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू लुक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ our tumor. Getting the point? Yes, we are going to look for the characteristics of the tumor. So try to understand क्या क्या फीचर होते हैं किसी ट्यूमर सेल में जिसके कारण हम उनको बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिवाइड करेंगे. पहला, नो डाउट, रेट ऑफ ग्रोथ. आइदर द रेट ऑफ ग्रोथ मे बी वेरी लेस और वेरी हाई. इन बिनाइन ट्यूमर द रेट ऑफ द ग्रोथ इज लेस, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द रेट ऑफ द ग्रोथ इज वेरी हाई. फाइन. नेक्स्ट we will see our cancer and stem cell like property. yes, कैंसर सेल में ट्यूमर सेल्स जो हैं उनमें स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है. वी विल सी व्हाट आर दिस स्टेम सेल प्रॉपर्टी. फाइन. रैपिडली डिवाइडिंग सेल, बिनाइन में कम रहेगी, मैलिग्नेंट में बहुत ज़्यादा रहेगी. गेटिंग द पॉइंट. आगे हम देखते हैं. Third one, we have to also take the help of the clinical and gross examination. Benign
कंपेरेटिवली कम खतरनाक है, मैलिग्नेंट बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट, ऑल्सो विल टेक द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। विदाउट माइक्रोस्कोपी पैथोलॉजी इज नॉट पॉसिबल। ओके, और पैथोलॉजी के बिना हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, मेडिसिन, सर्जरी, वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकल इन्वेजन। यस, आसपास की टिश्यू को तोड़ते हुए, फोड़ते हुए वो सेल्स कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, दैट इज अ लोकल इन्वेजन, इन्वेड करना। वी हैव टू लुक फॉर दिस। ऑल्सो वी हैव टू ऑब्जर्व फॉर द मेटास्टेसिस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, दैट इज अ मेटास्टेसिस। लोकल इन्वेजन, यू कैन से दिस वन एज द डायरेक्ट स्प्रेड, while the metastasis you can say this one as distant metastasis. So these are the our different points under which we are going to make the classification. See here, you can observe in your textbook this particular image. So we are going to make this image more easier, और ये हमारे पैथोलॉजी का 30% बेस बनाएगा। यस, सो जस्ट ऑब्जर्व दिस डायग्राम। ये एक नॉर्मल सेल का प्रोलिफरेशन कंडीशन है, या फिर आप कह सकते हैं कोई सेल का नॉर्मल सिचुएशन, और उसमें कैंसरस प्रॉपर्टी आती तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। जब यही चीज़ें एबनॉर्मल एक्सेसिवली हो जाएं तो मैलिग्नेंट कहेंगे, और एक लिमिटेड अमाउंट में रहे तो बिनाइन कहेंगे। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉइंट्स। यस, आई विल टेल यू बाय मेकिंग द डायग्राम। बेसल पोलैरिटी नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होती है, कैंसरस सेल में लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी कहना है। देयर इज अ नो प्लियोमॉर्फिज्म, आई विल टेल यू इन कैंसरस सेल्स देयर इज अ प्लियोमॉर्फिज्म, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्लियोमॉर्फिज्म। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो को हमें समझना है, जो कैंसरस सेल में हाई हो जाता है। यस, व्हाट इज द एन आइसोन्यूक्लियोसिस एंड व्हाट इज द एन आइसोसाइटोसिस, सो वी हैव टू लुक दिस 2 पॉइंट्स। क्रोमेटिन मटेरियल कैसा दिखता है, तो कैंसरस सेल में हाइपरक्रोमेटिज्म हमें समझ में आएगा। न्यूक्लियोलाई का अपीयरेंस कैसा होता है, तब हमें समझ में आएगा कि कैंसरस सेल में न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट हो जाते हैं। माइटोटिक फिगर हमें देखने हैं, तो हमें समझ में आएगा कि कैंसरस सेल में एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर क्या होता है। जाइंट सेल, ये हम अपने इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में लर्न कर चुके हैं। ट्यूमर के कंडीशन में ट्यूमर जाइंट सेल मिलते हैं। ऑल्सो यू कैन सी द साइटोप्लाज्म इज नॉर्मल वाइल इन अवर कैंसरस सेल due to the more and more division synthesis activity is increased, that's why mucin is also increased। और क्रोमोसोम को आप देखेंगे तो नॉर्मल सेल में 2n मिलेगा, जबकि कैंसरस सेल में 2n नहीं मिलेगा, या तो वो 2n+1 या फिर 2n-1, दैट इज अवर एन्यूप्लॉइडी। ओके, मतलब क्रोमोसोम में भी आपको नंबरिंग में प्रॉब्लम दिखाई देगी। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द पॉइंट्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल समझ में आएगा तब आपको बिनाइन समझ में आएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एवरी सेल्स दे आर सिचुएटेड ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। फाइन, ओके, हम एक टिपिकल सेल की बात कर रहे हैं, एंड देन दिस सेल्स आर सिचुएटेड इन सच काइंड ऑफ द मैनर। जनरली द बेस पार्ट इज वाइड एंड द अपर पार्ट इज एपाइकल, जनरली, नॉट ऑलवेज। हर सेल की अलग अलग क्वालिटी होती है। हम कैंसर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फाइन, नाउ यू विल सी दैट न्यूक्लियस इज हैविंग द टेंडेंसी टू बी सिचुएटेड टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ताकि उसको प्रॉपर सिग्नल मिलता रहे। फाइन, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, हियर इज अवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, हियर इज अवर न्यूक्लियस, एंड यू कैन सी द साइटोप्लाज्म। अगर ये सेल कुछ सिंथेसिस कर रहा है तो वो सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एपाइकल पार्ट में स्टोर होते हैं, एंड दे आर एक्सक्रीटेड। फाइन, एंड न्यूक्लियोलाई इज नॉट टू मच प्रोमिनेंट
generally. Suppose this is the nucleoli, okay, and you will see all the cells will have the similar features, that is known as the isocytosis. Getting the point? One by one हमने एक सेल बनाया. न्यूक्लियस इज हैविंग टेंडेंसी टू रेस्ट ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज बेसल पोलैरिटी. गेटिंग द पॉइंट? अगली चीज जो आपको समझनी है, ऑल द सेल्स आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ द साइड शेप, तो इसे हम कहते हैं आइसो. नॉर्मली आपको ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं. आइसो साइटोसिस, न्यूक्लियस का साइज भी एक जैसा रहेगा, दैट्स व्हाई यू विल से आइसो न्यूक्लियोसिस. गेटिंग द पॉइंट? यस. आप देखेंगे कि क्रोमेटिन मटेरियल एक सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज रहता है, लेकिन कैंसरस कंडीशन में क्रोमेटिन मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. फाइन, तो उसे हम कहेंगे यस एन आइसो और हाइपरक्रोमेटिज्म सिचुएशन. और जब आप नॉर्मल सिचुएशन में देखेंगे तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, न्यूक्लियस अगर 1x है तो साइटोप्लाज्म आपको 4 टाइम्स देखने के लिए मिलेगा. और अगर ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो चेंज हो गया, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया, मतलब अब सेल डिवीजन के फेस में एंटर करेगा, सेल डिवीजन आपको देखने के लिए मिलेगा. फाइन. नाउ दीज आर द डिफरेंट बेसिक पॉइंट्स. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे जैसे सेल में बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होता है, तो अब आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. यस, देयर इज अवर बेसमेंट मेम्ब्रेन. फाइन. सेल्स आर प्रोलिफरेटिंग एबनॉर्मली एक्सेसिवली. So the few cells are small, few cells are very large. Okay, fine. Few are, yes. फर्स्ट आई एम टेलिंग यू बिनाइन सिचुएशन. तो बिनाइन सिचुएशन में क्या होगा, सेम टाइप के सेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बट दे आर हैविंग द कैप्सूल. Proper covering they are having. Okay, cytoplasm is same eosinophilic. So try to understand. This situation is our benign tumor situation. You can observe that nucleus is not losing the basal polarity property. Yes, it is just proliferating and making the mass. So what you can say, there is abnormal mass, you can say abnormal, excessive, uncontrolled, unrestricted. Yes, our autonomous growth of the tissue. Fine. So this is the tumor. लेकिन आप देख रहे हैं सारे सेल्स एक जैसे हैं, all cells are having the similar size. So you can say again आइसोसाइटोसिस आपको देखने के लिए मिल रहा है. यस, न्यूक्लियस का साइज सेम है, सो आइसोन्यूक्लियोसिस इज seen. Also the nuclear cytoplasm ratio will be the 1:4. Just proliferation हुआ है, and you can see this all the cells are encapsulated. वो अपनी जगह में है, इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं. And can you see basement membrane is also normal. So remember, no invasion of basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो इन्वेजन होता है इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, तो आप कहेंगे नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस इज सेम. गेटिंग द पॉइंट. लेकिन अब जब यही मैलिग्नेंट हो जाए तो क्या होगा. सो दिस इज अवर बिनाइग्न ट्यूमर. अब बेटा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सी हियर. अब जब भी पैथोलॉजी में हम कोई भी ट्यूमर पढ़ेंगे, आई विल टीच यू द गैस्ट्रिक कैंसर, हिपैटिक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, कोई भी कैंसर, अब आपको यही चीज़ याद रखनी है. गैस्ट्रिक एडिनोमा, व्हाट आर द फाइंडिंग्स. यस, नो आइसोसाइटोसिस. यस, देयर विल बी द आइसोसाइटोसिस, आइसोन्यूक्लियोसिस, देयर विल बी द प्रोलिफरेशन. ओके,
ओके, लेकिन मैलिग्नेंट फीचर नहीं मिलेंगे, जस्ट सेल का आपको प्रोलिफरेशन मिल रहा है, बट दे आर नॉट पियर्सिंग द कैप्सूल, दे आर नॉट पियर्सिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड द फीचर्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम एज द नॉर्मल सेल। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, दे आर शोइंग द सेल डिवीजन। ओके, लेकिन अगर आपने इस पेशेंट को ठीक नहीं किया तो अब ये आगे चल करके मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट होगा। गेटिंग द पॉइंट, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट होगा, और मैलिग्नेंट ट्यूमर में जब ये कन्वर्ट होगा तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, सी हियर, सपोज दिस इज अवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, सपोज दिस इज अवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। फाइन, आगे समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा, सो सच काइंड ऑफ दिस appearance you will see. Also there is the piercing of the basement membrane, basement membrane टूट जाएगा, and cells are migrating from one place to the another place. Are you getting the point? Okay, so you can see this all the things. Also our capsule is broken down. Okay, so the cells are going away from their sites. Yes, suppose this is the cytoplasm, कई सारे साइटोप्लाज्मिक चेंजेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। Getting the point? Fine. And you can observe here the nucleus. न्यूक्लियस भी कोई छोटे, बड़े, okay, irregular, very large, occupying the more and more area in the cytoplasm, very large nucleus you are looking, cytoplasm is comparatively less. So what are the different points? See here, very important. First, you can say, okay, there is the capsule, capsule is broken down. So what you can say, loss of कैप्सूल, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ओके, इसी तरीके से आप दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर याद रखेंगे, दैट इज अवर, यस, बेसमेंट मेम्ब्रेन invasion, so it is showing distant metastasis. Okay sir, now see here, all the cells are having different shapes, so you will say yes, एन आइसोसाइटोसिस। याद करते चलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एन आइसोसाइटोसिस कहने का मतलब एन मीन्स एब्सेंस, आइसो मीन्स सेम, साइटोसिस मीन्स योर सेल साइज। तो सेल का साइज आपको एक नहीं मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। अब मैं आपको एन आइसोसाइटोसिस का मतलब नहीं समझाऊंगा, पूरे पैथो में ये चलेगा, मीन्स डिफरेंस इन द सेल साइज। ओके, नेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज भी आपको अलग अलग मिल रहा है। सो देयर इज, सपोज दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ, सो यू आर गेटिंग एन आइसो। ओके, एन मीन्स एब्सेंस, आइसो मीन्स सिमिलर। न्यूक्लियोसिस, यस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको सेम नहीं मिलेगा, सो यू आर सेइंग देयर इज द अवर एन आइसो न्यूक्लियोसिस ऑल्सो। गेटिंग द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोर थिंग। अगर आप न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो की बात करें, सो न्यूक्लियस रेशियो साइटोप्लाज्म इज मोर देन अवर 1:4। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का साइज
nucleus is very large. Nucleus is very large. Getting the point? Okay, so you have to remember this point. इसीलिए आपको पता है कि जब भी न्यूक्लियस का साइज एबनॉर्मली एक्सेसिवली बढ़ जाता है तो सेल डिवीजन के फेस में एंटर कर जाता है. तो सेल डिवीजन हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है. नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व द अवर अदर मोर थिंग्स. न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर में जब भी सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, तो कुछ मास रहते हैं जिसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि सेल कितने माइटोसिस के सिचुएशन से फेस क्रॉस हुआ है. सो यू विल सी द वेरियस अवर डिफरेंट काइंड ऑफ द एबनॉर्मल मास जो एबनॉर्मल माइटोसिस को शो करेंगे. सो दीज आर अवर एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर विच आर शोइंग द abnormal cell division process. Okay, so you are also observing another important point. Yes, within each cell you can observe abnormal mitotic figure. जब क्रोमेटिन को आप देखेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल को, तो वो बहुत ज़्यादा डेंस मिलेगा. सो यू विल से देयर इज अवर हाइपरक्रोमेटिज्म. यस, क्रोमेटिन मटेरियल बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा. ऑल्सो व्हाट यू विल गेट बेटा, सी हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस ऑल द सिचुएशन न्यूक्लियोलाई, क्योंकि न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन शो कर रहा है. तो न्यूक्लियोलाई विच इज हेल्पिंग द न्यूक्लियस, विच इज यू कैन से द कंट्रोल पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, तो न्यूक्लियोलाई वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है. सो व्हाट यू कैन एड द अदर पॉइंट, द न्यूक्लियोलाई इज प्रोमिनेंट. सो काइंडली एड वन मोर पॉइंट, अवर न्यूक्लियोलाई. ओके, और कई सारे सेल्स हमने जाइंट सेल वाले पार्ट में देखा था. क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, ट्यूमर के कंडीशन में कई सारे ट्यूमर सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ट्यूमर जाइंट सेल बनाते हैं. ओके, सो फर्दर थिंग्स यू कैन रिमेंबर. यस, क्रोमोसोम में भी एबनॉर्मलिटी मिलती है. सो यू कैन सी द डीएनए और क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी. also what you can remember, there is our, yes, DNA में आपको एन्यूप्लॉइडी तो मिलेगा ही मिलेगा. ऑल्सो यू कैन सी द ट्यूमर जाइंट सेल. yes, few cells will be visible very large because of the fusion of the different tumor cells, and they will have the many nucleus like the bone cell tumor. Okay, so you will get such kind of the cells also. So these are the features of the our malignant tumor. Now you have to know this all the things like the poem. Okay, कभी भी malignant tumor बोले, चाहे gastric carcinoma, चाहे breast carcinoma, we will talk about our hepatic carcinoma, biliary carcinoma, urinary bladder carcinoma, meningioma, many things. तो हर जगह एक कविता की तरह हमारे मुंह से निकलना चाहिए. Yes, what are the different microscopic feature of all the cancer. अभी तक मैंने जितनी चीजें बोली, आपका 30% पैथोलॉजी खत्म हो गया बेटा. ओके, जैसे इन्फ्लामेशन में मैंने आपको बताया था रुबोर, ट्यूमोर, डोलोर, कैलोर एंड फंक्शोलिसा. इन द सेम वे कोई भी अगर मान लो भयानक टाइप का कैंसर हुआ है, लॉस ऑफ कैप्सूल, ओके, abnormal capsule activity is lost, anisocytosis, anisonucleosis, altered NC ratio, abnormal mitotic figure, basement membrane invasion, distant metastasis, abnormal, yes, hyperchromatism, nucleoli is prominent, DNA nucleoid, tumor giant cell. ये एकदम पानी की तरह आपको याद हो जाएगा. फाइन. Okay, so after this all, now everything is easy. Okay, now you can go for the any diagram, you can see this all the things I told you. अब आप टेक्स्ट बुक उठाइए, कोई भी चीज़ पढ़िए, आपको चीज़ें बहुत आसान लगेगी. दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके एग्ज़ाम में आता ही है, और अगर न भी आए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब आप थ्योरी या एमसीक्यू, चाहे सर्जरी, मेडिसिन, किसी की भी बात करें, तो यही नॉलेज आपको पूरे मेडिकल साइंस में काम आएगा. बिकॉज कैंसर इज सीन इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट.
Fine. So we are looking for this very important table. So just open your textbook, मार्किंग साथ में करते चलेंगे बेटा. दीज आर द डिटेल क्लासेस. ओके, तो इस डिटेल क्लास में हम यस वी आर इंजॉइंग ईच बाइट ऑफ द नॉलेज. और साथ में आपका मोबाइल सामने ओपन होना चाहिए, फिर उसके सामने आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए, फिर आपकी कॉपी और पेन चलते रहनी चाहिए. 3 काम एक साथ. और आने वाले दिनों में फिर वीडियो नहीं देखना है. आपने बुक्स में मार्किंग की, आपने नोट्स बनाए. हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है, उसको नोट्स में ऐड कीजिए और अपने नोट्स को और स्ट्रांग बनाइए. वीडियो अब नहीं देखना, अब आपको नोट्स को रिवाइज करना है. बुक एक बार पढ़ना है, बुक की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उसको नोट्स में इंक्लूड करना है, लेकिन बुक की हर चीज़ को नहीं. ओके, अब सपोज एग्जाम टाइम आ गया, आपको 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25 जितने बार आप रिवाइज कर सकते, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपका मार्क्स उतना अच्छा जा रहा है. ओके, यू हैव टू जस्ट सी द नोट्स. कहीं कुछ कंफ्यूजन लगता है बुक ओपन कीजिए, और कहीं कुछ कंफ्यूजन लगता है वीडियोज ओपन कीजिए. बट अगेन एंड अगेन यू हैव टू रिवाइज द नोट्स. नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा. फर्स्ट स्टडी में थोड़ा कम टाइम लगेगा, सेकेंड स्टडी में और कम टाइम लगेगा. जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ 5 मिनट्स में आप अपने पूरे नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं. ओके, एक चैप्टर आपका 5 मिनट्स में. किस पर डिपेंड करता है? यू आर डूइंग रिविजन हाउ मच टाइम. ओके, सो नाउ सी हियर द डिफरेंसेस बिटवीन द बिनाइन एंड मैलिग्नेंट. सो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, मार्क दिस क्वेश्चन. अपने टेक्स्ट बुक में अपने नोट्स में मार्क करेंगे. इट इज वेरी मोस्ट important. You can give 5 star. Fine. Now see here, clinical and gross features. हेडिंग याद होना चाहिए. तो फीचर्स हम देखते हैं. तो क्लिनिकल एंड ग्रॉस फीचर्स के बेसिस में क्या क्या डिफरेंस है, किसमें? बिनाइन और मैलिग्नेंट में. फाइन. देन ऑन द बेसिस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस? ओके सर. देन व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ रेट, देन on the basis of the local invasion, then on the basis of the metastasis, and then on the basis of the prognosis. What are the different features? ओके सर, एक एक करके क्लिनिकल फीचर के बेसिस में हम देखते हैं. बिनाइग्न ट्यूमर की बातें करते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर की बातें करते हैं. ऑल द थिंग्स वी आर समराइजिंग. बाउंड्री की बात करते हैं. बिनाइग्न ट्यूमर इनकैप्सुलेटेड है, बहुत बढ़िया सा गोल सा आपको दिखेगा. वाइल द मैलिग्नेंट ट्यूमर ये इरेगुलर है, कैप्सूल में भी ब्रोकन. फाइन. नाउ सराउंडिंग टिश्यू, आसपास के टिश्यू की बात करेंगे. याद करते चले जाइए, क्योंकि टिश्यू बड़ा हो रहा है तो ये आसपास के टिश्यू को कंप्रेस करेगा, और जबकि मैलिग्नेंट ये आसपास के टिश्यू में घुस जाएगा. सो व्हाट यू विल से, यूजुअली इन्वेडेड. नेक्स्ट साइज की बात करते हैं. तो यहाँ पर आपको यूजुअली स्मॉल सेल्स दिखाई देंगे, जबकि मैलिग्नेंट में आपको लार्ज सेल दिखाई देंगे. नेक्स्ट सेकेंडरी चेंजेस की बातें करते हैं. तो बिनाइन में बहुत कम सेकेंडरी चेंजेस आपको नजर आएंगे, जबकि मैलिग्नेंट में बहुत ज़्यादा आपको मैलिग्नेंट चेंजेस नजर आएंगे. गेटिंग द पॉइंट. माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करते हैं. पैटर्न. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बिनाइन सिचुएशन में जो मेन टिश्यू था वैसा ही, न्यूक्लियस भी वैसा ही, साइटोप्लाज्म भी वैसा ही, माइटोटिक फिगर एबनॉर्मल नहीं रहेगा, एनसी रेशियो सब चीज़ें नॉर्मल. जबकि मैलिग्नेंट में ये मेन सेल के जैसा नहीं दिखाई देगा. नेक्स्ट बेसल पोलैरिटी की बात करते हैं. तो बिनाइन में बेसल पोलैरिटी, टेंडेंसी ऑफ द न्यूक्लियस टू बी सिचुएटेड टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस की टेंडेंसी कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ चिपक के रह सके, ताकि बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो भी सिग्नल मिले न्यूक्लियस उसको ले और उसके अकॉर्डिंग सेल को कंट्रोल करे. दैट इज द बेसल पोलैरिटी. ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ पोलर होना, उसकी तरफ झुकना. फाइन. वाइल in our malignant there is the loss of basal polarity. So remember, oh sorry, we had not included that point here. Okay, you can remember loss of capsule and basal polarity. तो ये 2 पॉइंट हम यहाँ पर इंक्लूड करें. दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर. ओके, आगे हम देखते हैं. यस, प्लियोमॉर्फिज्म. तो बिनाइन में एब्सेंट है. न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो नॉर्मल है. एनाइसोन्यूक्लियोसिस एब्सेंट है. हाइपरक्रोमेटिज्म एब्सेंट है. तो ये सारी चीज़ें आप आराम से याद रख सकते हैं. बेसल पोलैरिटी, प्लियोमॉर्फिज्म, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, एनाइसोन्यूक्लियोसिस, एनाइसोसाइटोसिस, हाइपरक्रोमेटिज्म, माइटोसिस.
ओके, दिस ऑल आर एब्सेंट। ओके, माइटोसिस यस इट मे बी प्रेजेंट, लेकिन हमेशा ये टिपिकल माइटोसिस जैसा नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मैलिग्नेंट में यस, सी हियर मार्क इन योर टेक्स्ट बुक, प्लियोमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, मल्टीपल मॉर्फोलॉजी। तो आप इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि एनाइसोसाइटोसिस और एनाइसोन्यूक्लियोसिस है, तो आप कहेंगे यस दिस इज अवर प्लियो, प्लियो मीन्स मल्टीपल, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी। तो इसमें मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा आपको मल्टीपल देखने के लिए मिलेगी। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स। यस, देयर इज अवर, you can get the point. Okay, basal polarity is lost, fine sir, pleomorphism is present, nuclear cytoplasmic ratio is increased, anisonucleosis, anisocytosis, hyperchromatism, abnormal mitotic figure, these all are very finely seen। मैलिग्नेंट है, खतरनाक ट्यूमर है, आपको उस कैंसर को कट करके निकालना ही पड़ेगा। फाइन, नाउ ट्यूमर जाइंट सेल मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट भी है तो न्यूक्लियस एबनॉर्मल नहीं है, न्यूक्लियर एटीपिया नहीं है। वाइल हियर द अवर ट्यूमर जाइंट सेल्स मे प्रेजेंट विद द न्यूक्लियर एटीपिया, न्यूक्लियस एबनॉर्मल दिखाई देंगे। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इनफ्रिक्वेंट, जबकि यहाँ पर आपको इनवेरिएबली प्रेजेंट दिखाई देगा। देयर इज द डिफरेंस इन द क्रोमोसोमल नंबर 2n+1 2n-1 नंबर चेंजेस आपको दिखाई देंगे। फंक्शन, तो बिनाइग्न ट्यूमर में सेल का फंक्शन नॉर्मल है, पता ही नहीं चलता आदमी को कि उसे कैंसर हो गया है, जबकि मैलिग्नेंट में मे बी रिटर्न लॉस्ट एंड बिकम एबनॉर्मल, एबनॉर्मल फंक्शन हो जाता है। किडनी में एबनॉर्मलिटी, लीवर में एबनॉर्मलिटी, ब्रेन में एबनॉर्मलिटी, और पेशेंट की जान बचानी मुश्किल हो जाती है। नाउ ग्रोथ रेट, यस ग्रोथ रेट, तो बिनाइन ट्यूमर स्लो ग्रोथ रेट, वाइल द मैलिग्नेंट रैपिड ग्रोथ रेट। लोकल इन्वेजन, तो आप देखते हैं ऑफन कंप्रेसेस द सराउंडिंग टिश्यू विदाउट इन्वेडिंग और इन्फिल्ट्रेटिंग देम। ओके, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि लोकल इन्वेजन आसपास की चीजों को कंप्रेस बस करेगा, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं इट इज यूजुअली इन्फिल्ट्रेटिंग एंड इन्वेडिंग द एडजेसेंट टिश्यू। मेटास्टेसिस की बात करेंगे तो यहां पर आप मेटास्टेसिस एब्सेंट देखेंगे बिनाइग्न में, लेकिन यहां पर मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर, नो एक्सक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ओके, प्रोग्नोसिस की बात करेंगे तो लोकल कॉम्प्लिकेशन आपको नजर आएंगे बिनाइग्न में। ओके, जबकि यहां पर सीधे सीधे डेथ की बात आपको करनी है। फाइन, सो दीज आर द डिफरेंट ओके पॉइंट्स रिगार्डिंग द बिनाइन। अगर एग्जाम में बिनाइन आया तो भी आप लिख सकते हैं, मैलिग्नेंट आया तो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में मेनली आएगा डिफरेंस बिटवीन द बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। और याद रखेंगे इन्यूमरेट आया तो सिर्फ आपको काउंट करना है, 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन है तो। लेकिन अगर लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट आया तो बेटा प्रॉपर आपको डायग्राम बनाना है। ओके, या फिर आप ये बताइए और नीचे में डायग्राम बना दीजिए छोटा छोटा सा। फाइन, सो दीज आर द अवर डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ फर्दर मोर थिंग्स वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, दिस ऑल द पॉइंट्स आर डिस्क्राइब्ड। हम इसको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं। दिस ऑल द पॉइंट्स आर डिस्क्राइब्ड, रेट ऑफ द ग्रोथ, फिनोटाइप, स्टेम सेल्स, दिस ऑल। ओके, and now you are also able to understand this diagrammatic presentation। see here, ये आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का कैंसर, दिस इज अवर बिनाइन कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं एक मास, कैन यू सी, दिस इज अवर बिनाइन मास जो एक पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड है, इनकैप्सुलेटेड है। ओके सर, while here you are looking this mass is excessively increased और वो निप्पल तक जा रहा है, यहां पर चेंजेस ला रहा है, तो हम देखेंगे इट इज कॉजिंग द रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल, डिम्पलिंग ओवर द स्किन। यस, ये छोटा सा मास है, चूहे की तरफ फ्रीली मोबाइल होता है, तो इसे हम कहेंगे माउस ऑफ द ब्रेस्ट, माउस ऑफ ब्रेस्ट। while this is the very dangerous condition where you will see the powdery orange appearance, कूपर्स लिगामेंट दे आर कमिंग इनसाइड। फिर हम माइक्रोस्कोपिक फीचर देखेंगे तो लगभग ब्रेस्ट के जैसा ही आपको अपीयरेंस मिलेगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, दिस ऑल आर नॉर्मल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोमा बढ़ा हुआ मिल सकता है, डक्ट जो है वो कंप्रेस दिखाई देंगे क्योंकि कोलेजन बढ़ गया है। फाइन, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सेल्स एबनॉर्मली एक्यूमुलेट है। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर सेल, यहाँ पर आपको एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर भी नजर आ रहा है। अगर आप उसके न्यूक्लियस को आराम से ध्यान से झांकेंगे तो उसमें आपको पर्पल कलर की
डायनासोर की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। फाइन, यस। कभी सेल्स जो हैं वो आपके शीट के फॉर्म में है, कभी एक वाइड राउंडेड कॉलम की तरह है, कभी एसिनाई की तरह है, तो अलग अलग टाइप के अपीयरेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। फाइन, तो ये बिनाइन हो गया, ये आपका सॉरी दिस इज द मैलिग्नेंट, हियर इज द बिनाइन। इसी तरीके से हम यूट्रस की बात करेंगे तो बहुत ही कॉमन कंडीशन है लियोमायोमा, ओके, विच इज ऑल्सो द फाइब्रॉइड। यस, हम फाइब्रॉइड ऑफ द ट्यूमर, फाइब्रॉइड ऑफ द यूट्रस ऑल्सो वी विल सी फाइब्रॉइड। यस, कैन यू सी फाइब्रॉइड। तो यूट्रस के अंदर में मांस बन रहा है, तो यूट्रस में सार्कोमा भी बनता है, फाइब्रॉइड ट्यूमर भी होता है, ओके। तो मांस बन रहे हैं, ये हम यूट्रस वाले चैप्टर में देखेंगे। अगर आप माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखेंगे तो बिनाइन फाइब्रोब्लास्ट है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन हो रहा है, कुछ डिपोजिशन मिल रहे हैं, हाइलिन चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सेल्स जो है गोल गोल सुंदर तरीके से अरेंज है, वर्ल्ड पैटर्न। लेकिन वहीं पर जब आप मैलिग्नेंट देखते हैं तो ये सेल्स इधर उधर बिखर गए हैं, तितर बितर हो गए हैं, ओके। दे ऑल आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर, नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज सीन देयर। और बड़े बड़े सेल्स नजर आ रहे हैं जिसमें खूब सारे न्यूक्लियस है, ट्यूमर जाइंट सेल्स, एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर, हाइपरक्रोमेटिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म, यस, एनाइसोसाइटोसिस, एनाइसोन्यूक्लियोसिस, अल्टर्ड एनसी रेशियो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, दिस ऑल द फीचर्स यू कैन से। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं बीच बीच के सेल्स में माइटोटिक फिगर एबनॉर्मल बनाया गया है। ध्यान से देखिए डायग्राम को। फाइन, नाउ आफ्टर दिस ऑल try to understand, yes, more points, okay sir, this all the points we described in a very nice way, okay। yes, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं कि कैंसर को प्रोलिफरेट करने में कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर का रोल होता है। सो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस ऑल, okay, and this clinical and gross features, this all the points are given, we describe this all the points, okay। Microscopic features, microscopic pattern, and this all the points we described in very detail, so you can go with them, fine, whatever the important points I told you। Now see here what are the different our points which are causing the cancer। see here, न्यूप्लेजिया चैप्टर आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, ओके। सो आई टोल्ड यू द वेरी वेरी नाइस पॉइंट्स इन अ वेरी डिटेल पार्ट। यस, सी हियर, रेगुलेशन ऑफ द ट्यूमर ग्रोथ, इसके लिए कई सारे केमिकल मीडिएटर्स निकलते हैं। नॉर्मली ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ट्यूमर होता है तो इनका अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इसे हम EGF कहेंगे। डेफिनेटली ये इपिडर्मिस का बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। देयर इज अवर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, तो फाइब्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा डिवाइड करेंगे, इसके कारण ट्यूमर होगा। प्लेटलेट से बनने वाले कई सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये भी कई सारे सेल डिवीजन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, यू नो, हमारे बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो टिश्यू ट्रांसफॉर्मेशन मदद करेंगे। इंटरल्यूकिन्स इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इवन सेल डिवीजन की एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल्सो यू विल सी द VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इज देयर। ऑल्सो यू विल सी द हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर। फाइन, सो दीज आर द अवर डिफरेंट पॉइंट्स regarding the benign and the malignant. Fine, now we are going to start our nomenclature of the tumor also in our next segment. Thank you.